Good morning, everyone. Welcome to the viewers and the students of NutriOcean channel. I am Dr. Prabjot Kaur, Assistant Professor in Foods and Nutrition from Guru Nanak Girls College, Yamunanagar. Today, I am going to discuss with you about fat-soluble vitamins, part 1. I'll be explaining you about the fat-soluble vitamins in this module. So, this module has been prepared for the undergraduate classes of B.Sc Home Science, Semester 2. Subject name Fundamentals of Nutrition. Course code is 206 of MDU syllabus. And also for B.Sc Home Science Semester 2 students with subject Basic Nutrition, course code 115 of KUK syllabus, and BA Home Science Semester 5 students, Foods and Nutrition subject code, and course code is 301 of Kurukshetra University, Kurukshetra. So students, let's start our topic, which is fat-soluble vitamins. Before moving to fat-soluble vitamins, I would like to discuss with you the learning outcomes of this session. The first outcome will be you will be able to describe the structure and functions of fat-soluble vitamins. You will be able to identify their food sources. You will also be able to know the consequences of their deficiency and toxicity, and you will be able to recognize the recommended dietary amount needed during various physiological stages, and you will be able to appreciate their importance in the diet. तो बच्चों, आज का हमारा जो विषय है वो है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन हम डिस्कस करने वाले हैं जो बीएससी होम साइंस सेमेस्टर 2 के सिलेबस का पार्ट है। एमडीयू का भी कोर्स कोड का सब्जेक्ट का नेम है फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन, एंड केयूके में कोर्स का नेम है बेसिक न्यूट्रिशन। तो इस वीडियो लेक्चर के जो लर्निंग आउटकम्स हैं आफ्टरवर्ड्स आपकी जो जिन चीज़ों में आप केपेबल हो पाएंगे वो हैं कि आप इन वसा में घुलनशील विटामिनों के संरचना एवं कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप उनके भोज्य स्रोतों को आइडेंटिफाई करने के लिए सक्षम होंगे तथा आप उनकी कमी और अधिकता के जो प्रभाव हैं उनको समझ पाएंगे। इन एडिशन टू दिस आपको उनकी दैनिक प्रस्तावित मात्रा जो कि डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में लाइफ में हमें चाहिए उसकी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। इसके अलावा आप डाइट में डेली फूड में इनकी क्या इम्पॉर्टेंस है, ये कितने महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जान पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विच इज़ फैट सोल्यूबल vitamins. But before moving to fat soluble vitamins, because this is the first part of the sequel of vitamins, I would like to discuss with you about first of all what are vitamins. सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विटामिन होते क्या हैं और ये फैट सॉल्युबल के अलावा और कौन से प्रकार में अवेलेबल होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विद द डेफिनेशन ऑफ vitamins. Vitamins are a group of unrelated organic substances occurring in many foods in very small amounts, and they are necessary in trace amounts for the normal metabolic functioning of the body. Vitamins are the organic substances that act as coenzyme and or as regulators of various metabolic processes. तो बच्चों, विटामिन एक ऐसा समूह है पदार्थों का जो बहुत सारे भोजनों में बहुत थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं तथा इनका वो थोड़ा सा अमाउंट हमारे बहुत सारी उपापचय की चयापचय की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अति आवश्यक है। तो हमारी बॉडी की जो कार्य प्रणाली है वो नॉर्मल चल पाती है जब विटामिन हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें इनकी डेफिनेशन की तो ये ऐसे कार्बोनिक पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा अन्य कुछ अणुओं से बने होते हैं और ये बहुत सारी हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, हमारी चयापचय की क्रियाओं में सह एंजाइम अथवा या और बहुत सारे नियमित करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, उनके रेगुलेटर का कार्य करते हैं, उनके नियंत्रण का कार्य करते हैं। इसलिए इनका हमारे बॉडी में और हमारे शरीर में आना डाइट के द्वारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तक
we till date we know about the 13 vitamins, most of which are present in foods, but there are a very few which are produced within the body. अब वो animals की body में present होते हैं या human body में होते हैं, this will be able to discuss afterwards. So broadly classifying, vitamins can be classified into two main categories, out of which the first category is fat soluble and the other category is water soluble. तो जो पहली श्रेणी है वो है वसा में घुलनशील विटामिन, जबकि दूसरी श्रेणी है जल में घुलनशील विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई और के को फैट सोल्यूबल इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे आर फाउंड इन नेचर इन वेरी क्लोज एसोसिएशन विद द फैटी फूड्स। ये ज़्यादातर वसीय पदार्थों में ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे बटर, क्रीम, वनस्पति तेल, मीट, अंडा, मछली, पोल्ट्री एट्सेट्रा। तो इसलिए इनको वसा में घुलनशील विटामिन बोला जाता है। हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन्स इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हम ऑलरेडी पिछली 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर हम ब्रॉडली इनको देखने की कोशिश करें तो विटामिन्स के जो टाइप्स हैं 2 हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, जिसमें हमारा वाटर सॉल्युबल में है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, जबकि फैट सॉल्युबल में है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल बी डिस्कसिंग द 2 फैट सॉल्युबल विटामिन्स, दैट इज व्हाट इज फैट सॉल्युबल विटामिन्स पार्ट 1, wherein we'll be discussing vitamin A and vitamin D, and in the next sequel we'll be discussing about vitamin E and vitamin K. Vitamin B complex and vitamin C have already been discussed by me in the adjoining 3 video lectures, wherein you will be able to understand about all the vitamins of B complex and vitamin C. सो अगर हम एक बार टेबुलर फॉर्म में देखने की कोशिश करें तो ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ए, डी, ई और के, जबकि बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन्स हैं, विटामिन B1, B2, B3, B6, B9, बायोटिन, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड को कभी कभी विटामिन B5 के नाम से भी जाना जाता है, एंड विटामिन B12। सो बायोटिन और पेंटोथेनिक एसिड बहुत ज़्यादा फूड्स में प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए हम इनको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, बट बाकी के विटामिन्स हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट vitamin B complex and vitamin C. So let's move to the main topic of this presentation, which is vitamin A. Vitamin A is one of the fat soluble vitamins and it refers to a subgroup of retinoids that possess the biological activity of all trans retinol. ये रेटिनॉइड्स ग्रुप एक समूह है जिसमें रेटिनॉइड्स समूह में नेचुरली अकरिंग फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए होती हैं, जो कि रेटिनोल है या रेटिनाइल एस्टर्स हैं। रेटिनल्डिहाइड, रेटिनल, रेटिनोल, रेटिनाइल एस्टर्स, ये सभी के सभी विटामिन ए का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाते हैं। इसके जो भोज्य स्रोत हैं, जो फूड सोर्सेज हैं, वो हैं इट इज़ फाउंड ओनली इन फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन इन द फॉर्म ऑफ रेटिनोल। ये जो जितने भी पशुजन्य स्रोत हैं उनमें रेटिनोल की फॉर्म में मिलता है, जबकि प्लांट सोर्सेज में ये कैरोटीन की फॉर्म में मिलता है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। मिल्क, चीज़, क्रीम, बटर, घी, एग, फिश, किडनी एंड लिवर ऑयल्स ऑफ फिश सच एज हैलीबट, कोड एंड शार्क। तो ये जितनी भी चीज़ें सारी पशुजन्य हैं, जैसे कि गुर्दे और यकृत या फिश लिवर ऑयल, फिश के यकृत का तेल, बाकी दूध, चीज़, क्रीम, मक्खन, घी, अंडा आप सब जानते हैं, इनमें ये रेटिनोल की फॉर्म में मिलता है। जबकि जो इसका प्रीकर्सर है, जिसका पूर्वगामी है विटामिन ए का, रेटिनोल का, दैट इज बीटा कैरोटीन, that is found primarily in plant foods which contain orange or yellow colored pigments called carotenoids. तो जितने भी फ्रूट्स जो येलो या ऑरेंज कलर के होते हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स जो ऑरेंज या येलो कलर की हैं, उनमें येलो ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं जिनको कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं। दे आर गुड सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्वगामी है, परंतु विटामिन ए रेटिनोल की फॉर्म में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जबकि बीटा कैरोटीन की मात्रा हमें ज़्यादा खानी पड़ती है फॉर गेटिंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ रेटिनोल, क्योंकि ये जब कन्वर्ट होता है तो ये लगभग 1/4 to 1/8 रह जाता है। पाम फ्रूट एंड रेड पाम ऑयल रिचेस्ट सोर्स हैं बीटा कैरोटीन के, और उसके अलावा ऑल डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितनी भी गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पके हुए फल जैसे कि मैंगो, पपाया, एप्रिकॉट्स यानी कि खुरमानी, और येलो ऑरेंज वेजिटेबल्स जैसे कैरेट, पम्पकिन, स्वीट पोटैटो, दे ऑल आर रिच इन बीटा कैरोटीन। तो हमें इनका सेवन करना चाहिए। देन कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ विटामिन ए, जैसा कि आप सबको पता है विटामिन ए का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है विजुअल परसेप्शन में।
हमें दिखाई देने में। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नॉर्मल विजन साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी कि वो क्या है। बेसिकली हमारी रेटिना के अंदर जो आंख का रेटिना है, इट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ सेल्स, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। दोनों के दोनों सेल्स आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। When we enter from a dark room to a bright light, तब भी हमारी आंखों को हमें थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है। इसी प्रकार जब हम किसी ब्राइट लाइट से एकदम से डिम लाइट में आते हैं, तब भी हमारी आंखों को कुछ देर लगती है अपने लेंस को अडेप्ट करने के लिए, आई लेंस को, टू सी द विद क्लैरिटी. So rod cells are sensitive to dim light and the cone cells are responding to bright light. So whenever we enter from a bright light to a dark room, तो हमारे जो रोड सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं एंड दे सिक्रीट प्रोटीन और पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सिन. ये रोडोप्सिन जो सिंप्लीफाइड विजन साइकिल में आपको एक्सप्लेन किया गया है, जब हम लाइट की तरफ जाते हैं तो जो रोडोप्सिन है वो प्रोटीन और विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है. सो प्रोटीन का नाम है ऑप्सिन और विटामिन ए हो गया आपका रेटिनोल. लेकिन जब आप डार्क में जाते हैं तो ऑप्सिन प्रोटीन जो कि आइज में प्रेजेंट है प्लस विटामिन ए जो आपने डाइट्स के थ्रू लिया है, वो दोनों कंबाइन होकर रोडोप्सिन पिगमेंट की फॉर्मेशन करते हैं. एंड दिस रोडोप्सिन इज द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू सी क्लियरली इन डिम लाइट. जिन लोगों में इसकी कमी होती है उनको डिम लाइट में ब्लर्ड दिखता है, धुंधला दिखता है या ठीक से दिखाई नहीं दे पाता है, जिस प्रॉब्लम को हम नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी के नाम से जानते हैं. उसके बारे में हम डेफिशिएंसी वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे. सेकेंड फंक्शन ऑफ विटामिन ए इज द रोल इन द ग्रोथ एंड सेलुलर डिफ्रेंसिएशन. तो हमारी बॉडी की जितने भी एपिथेलियल सेल्स हमारी बॉडी के जो सारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ जो करते हैं, दे ऑल्सो वर्क विद द हेल्प ऑफ विटामिन ए. एंड व्हेन देयर इज विटामिन ए डेफिशिएंसी, तो जो गॉबलेट सेल नंबर्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं एंड एज अ कंसिक्वेंस हमारी जो म्यूकस सिक्रीशंस हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, कम होनी शुरू हो जाती हैं. एज अ रिजल्ट वी डू नॉट गेट नॉर्मल growth. So this is vision cycle which we have already discussed. Another function of vitamin A is its role in immune response. It is essential for the normal immunity function and regulation of immunity process. हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, हमारी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को बढ़ाकर हमें डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी प्रदान करता है. Integrity of the epithelial tissues. It is also essential for the integrity of mucus secreting cells. जिन भी सेल्स में से म्यूकस यानी कि लशीला पदार्थ निकलता है जो कि हमारे बॉडी को फ्रिक्शन से बचाता है. It maintains the health of the epithelial cells that line the internal and external surfaces of lungs, intestine, stomach, vagina, urinary tract, bladder, आइज एंड स्किन. सो इसलिए यहाँ से जो म्यूकस निकलती है, जो चिपचिपा पदार्थ इन ऑर्गन्स के बाहर या इंटरनल बाउंड्री की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है, जो अंदर की स्किन होती है, उसको गीला रखता है और चिपचिपा पदार्थ रखता है विच एक्ट एज एन बैरियर, जो एक गार्ड का कार्य करती है, बैक्टीरिया को इन ऑर्गन्स में एंटर नहीं करने देती. तो देखो कितने वाइटल ऑर्गन्स, हमारे फेफड़े, हमारी आंतें, हमारा पेट, हमारा यूरिनरी पार्ट, फीमेल यूरिनरी पार्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, मूत्र नली और मूत्र थैली, ब्लैडर, आंखें और त्वचा को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इन्फेक्शंस. रोल एज एंटीऑक्सीडेंट, जो मैंने आपको अभी बताया, विटामिन ए इज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो कैरोटीनॉइड्स हैं. इन एडिशन टू सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए, दे वर्क एज एंटीऑक्सीडेंट ऑल्सो. तो जितना प्लांट सोर्सेज से बीटा कैरोटीन मिलेगा या जितने आप येलो एंड ऑरेंज कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करेंगे, वो आपको एजिंग से बचाएंगे, फ्री रेडिकल्स के डैमेजिंग इफेक्ट से बचाएंगे और बहुत सारी डिजीज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे. बोन एंड नर्व्स में भी इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन ए का. इट हेल्प्स इन दी बोन फॉर्मेशन एंड द एसोसिएशन ऑफ इट्स डेफिशिएंसी इज रिलेटेड टू द माइलिन शीथ. जो माइलिन शीथ हमारे टिश्यूज़ के अराउंड होती है, उसको भी ये बनाने में हेल्प करता है. इसलिए बोन फॉर्मेशन में विटामिन ए प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अनदर फंक्शंस इंक्लूड रोल इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से एबनॉर्मल आरएनए मेटाबॉलिज्म होता है जिसकी वजह से ग्रोथ इंटरफेयर होती है, इसलिए इसको ग्रोथ विटामिन भी बोला जाता है. रोल इन द सिंथेसिस ऑफ म्यूकोप्रोटीन्स एंड म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स. विटामिन ए हमारी बॉडी में म्यूकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स
और इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टेन म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, और उनकी संरचना में, उनके संश्लेषण में सहायता करता है, जो हमारी बॉडी का इंटेग्रल ग्रोथ का हिस्सा है, हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है. It also plays an important role in reproduction. When there is deficiency of vitamin A in the diet, it leads to infertility in male and failure of the female for conception और abortion of the fetus, chiefly in animals. Animals में, जानवरों में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, परंतु इसका जो रोल है वो मेल्स में नपुंसकता पैदा करता है तथा फीमेल्स को गर्भ धारण करने में दिक्कत आ जाती है जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है या मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं. Seeing the functions of vitamin A, now we need to discuss about the RD of vitamin A, which has been given by ICMR in the 2010 report. Vitamin A को देखो रेटिनोल और बीटा कैरोटीन दोनों की फॉर्म में बताया गया है स्टूडेंट्स. यहाँ से आप बहुत क्लियरली जज कर पा रहे हैं कि रेटिनोल की मात्रा 600 माइक्रोग्राम प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट है, जबकि बीटा कैरोटीन मेन के केस में 4800 माइक्रोग्राम्स चाहिए. जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब ये कन्वर्ट होता है तो रेटिनोल कम बनता है ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैरोटीन से, इसलिए बीटा कैरोटीन को 8 गुना खाया जाता है. अगर आप 4800 माइक्रोग्राम्स खाएंगे तो उससे आपका 600 माइक्रोग्राम रेटिनोल विल बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि ये कन्वर्ट होता है. इसलिए बीटा कैरोटीन प्लांट सोर्सेज वाले लोगों को ज़्यादा विटामिन ए और बीटा कैरोटीन का अमाउंट ज़्यादा खाना है, जबकि जो लोग मांसाहारी हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स का सेवन कर रहे हैं, उनको कम क्वांटिटी में ही रेटिनोल की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो सकती हैं. फीमेल्स के लिए भी सेम रेंज है, बट इट इज़ इंक्रीज्ड इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, क्योंकि जो भ्रूण है उसकी ग्रोथ के लिए भी, फीटस की ग्रोथ के लिए भी, बच्चे की ग्रोथ के लिए भी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्रोथ विटामिन है. प्लस बच्चे को विटामिन ए और आयरन 6 मंथ्स का स्टोर लेकर पैदा होता है, अपने लिवर में स्टोर करके लाता है मदर्स की बॉडी से. इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज में 800 रेटिनोल माइक्रोग्राम्स इज रिक्वायर्ड एंड बीटा कैरोटीन इज रिक्वायर्ड 6400, while in lactating mother of 0 to 12 months 950 micrograms of retinol and 7600 micrograms of बीटा कैरोटीन इज रिक्वायर्ड. इन्फेंट्स के केस में 350 माइक्रोग्राम्स चाहिए, और बीटा कैरोटीन देखो 6 मंथ तक मैंने कहा था ना, बच्चा क्योंकि सिर्फ मदर की फीड पे डिपेंडेंट होता है, सो देयर इज़ नो एडिशनल विटामिन ए विच इज़ गिवन टू द चाइल्ड, इसलिए उसकी अपनी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं दिखाई गई है. जितना मदर के मिल्क में जा रहा है वही उसकी बॉडी के अंदर नॉर्मल फंक्शंस के लिए एफिशिएंट होता है, बिकॉज द चाइल्ड इज़ नॉट टेकिंग एनी आउटसाइड डाइट. सिमिलरली जब बच्चा 6 to 12 मंथ्स का है तो धीरे धीरे हम वीनिंग फूड्स पे ले आते हैं और उसकी ग्रोथ ज़रूरी है, इसलिए उस टाइम पे उसको 2800 माइक्रोग्राम्स बीटा कैरोटीन इज रिक्वायर्ड. एंड देन यू हैव, और बच्चे का लिवर इतना अभी डेवलप भी नहीं हुआ था कि वो बीटा कैरोटीन को उसमें कन्वर्ट कर सके, और बच्चा क्योंकि मिल्क से ले रहा है तो सिर्फ एनिमल रिक्वायरमेंट ही है, वो प्लांट सोर्सेज नहीं ले रहा. इसलिए इन्फेंट्स में जो 350 माइक्रोग्राम्स है वो कॉमन है फ्रॉम 0 to 12 मंथ्स रेटिनोल, बट बीटा कैरोटीन तब आएगा जब आप उसको डाइट देनी शुरू करते हैं. देन कम्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ 1 to 6 years it is 400 and 3200 respectively, while in 7 to 9 years and in boys and girls of 10 to 17 years it is standard fixed 600 micrograms like adult male and adult female, 600 micrograms a day as retinol and 4800 micrograms a day as beta carotene. So let's move to the next part. After recommended dietary allowances, we have the next part is the deficiency of vitamin A. The deficiency of vitamin A, इसके जो साइंस प्रोड्यूस होते हैं, जो लक्षण आते हैं, सबसे पहले वो आते हैं ड्राई स्किन, क्योंकि स्किन के एपिथेलियल टिश्यूज ड्राई हो जाएंगे. ड्राई आइज भी डल हो जाएंगी. नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जो हमने डिस्कस किया, डिफिकल्टी टू सी इन डिम लाइट. इनफर्टिलिटी एंड ट्रबल इन कंसीविंग जो हमने डिस्कस किया, उसका रिप्रोडक्शन वाला रोल जिसमें नपुंसकता और गर्भधारण में समस्या. डिलेड ग्रोथ, क्योंकि ये ग्रोथ विटामिन है. थ्रोट एंड चेस्ट इन्फेक्शंस जो हमने डिस्कस किया, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इन्फेक्शन की फाइटिंग इम्यूनिटी प्रदान करता है. एंड पुअर वुंड हीलिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इम्यूनिटी फैक्टर ऑफ विटामिन ए. तो सिमिलरली जब हम डिस्कस करें, इसकी बेसिकली जो डेफिशिएंसी है वो आइज़ के लिए बहुत डेंजरस है, इसलिए उसको स्पेसिफिकली डिस्कस कर रही हूँ. द ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, ऑक्यूलर मीन्स विच आर रिलेटेड टू आई. बेसिकली द डिजीज इज टर्म्ड एज जीरोथैल्मिया. जीरोथैल्मिया की 6 स्टेजेस हैं. फर्स्ट स्टेज इज नाइट ब्लाइंडनेस जो हमने रतौंधी डिस्कस की, जिसमें व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है अंधेरे में या शाम के बाद, जब लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है. व्हेन देयर इज लेस सनशाइन द
patient is not able to see. This is the primary stage. If it is not treated, it leads to conjunctival cirrhosis. If it is not treated, it leads to whited spot. यहाँ तक की जो स्टेजेस हैं ये रिवर्सिबल हैं, जिनको आप विटामिन ए डाइट में इंक्लूड करके रिवर्स कर सकते हैं। परंतु जब ये स्टेज कॉर्नियल जीरोसिस, केराटोमलेशिया या कॉर्नियल स्कार तक पहुंच जाती है, उस टाइम पे जो जीरोथैल्मिया है दैट इज अनट्रीटेड एंड इट कैन लीड टू कंप्लीट ब्लाइंडनेस ऑफ द आई। सो हम डिस्कस करते हैं इन सब स्टेजेस को जस्ट बाय द डेफिनेशन। नाइट ब्लाइंडनेस इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ जीरोथैल्मिया। द पेशेंट कांट सी आफ्टर डार्क, जो मैंने अभी आपको बताया कि सनलाइट जब डिम हो जाती है शाम के बाद उसको दिखना बंद हो जाता है, एंड इन अ डार्क रूम। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको कॉमन लाइफ से। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी बोल राधा बोल, उसमें कादर खान का जो करेक्टर था उसको शाम को 6 बजे के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है। दैट वॉज अ केस ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस और रोतोन थी। देन इफ इट इज अनट्रीटेड इट लीड्स टू कंजक्टाइवल जीरोसिस, जिसके अंदर आपकी आईज के अंदर ड्राई सूखे सूखे पैचेस बन जाते हैं विच आर रिलेटेड टू रिंकलिंग, आंख सिकुड़ना और रिंकल करना शुरू कर देती है, एंड पिगमेंटेशन विच गिव्स अ स्मोकी अपीयरेंस टू द कंजक्टाइवा। आपकी जो आईज की जो आईलिड है, कंजक्टाइवा जो मेम्ब्रेन है, उसमें धुंधलापन आना शुरू हो जाता है। फिर अगर इस स्टेज पे भी आपने विटामिन ए लेना शुरू नहीं किया या उसकी सप्लीमेंट्स लेने शुरू नहीं किए, देन इट कैन लीड टू बाइटेड स्पॉट्स विच आर द एक्यूमुलेशंस ऑफ फॉर्मी चीजी मटेरियल ऑन द कंजक्टाइवा शोइंग वाइट ट्रायंगुलर प्लेक्स। तो वो जो इकट्ठे जो ड्राई पैचेस थे जो स्मोकी अपीयरेंस से बने थे रिंकल से या पिगमेंटेशन से, वो इकट्ठे हो जाते हैं और उनके छोटे छोटे पैच बन जाते हैं जो अधिकतर त्रिकोणे प्लेक्स की तरह एक लेयर बना देते हैं वाइट से चीजी मटेरियल की आंख के ऊपर। देन यहाँ पे विटामिन ए तक रिवर्सिबल है। उसके बाद जब कॉर्नियल जीरोसिस होता है, सो कॉर्नियल जीरोसिस मेक्स द कॉर्निया सो ड्राई कि उसके अंदर केराटिनाइजेशन हो जाती है विच प्रोग्रेसेस सडनली एंड इट रैपिडली लीड्स टू केराटोमलेशिया। तो वो केराटोमलेशिया तक ले जाता है। अब जब कॉर्नियल जीरोसिस क्या होता है कि कॉर्निया के ऊपर जीरोसिस मीन्स पैचेस बन गए, धब्बे बन गए, जिससे कॉर्निया इतना ड्राई हो गया कि उसकी जो प्रोटीन है वो केराटिनाइज होने लग जाती है, और ये कभी कभी इतना तेज़ी से बढ़ जाता है कि फटाफट केराटोमलेशिया हो जाता है। केराटोमलेशिया क्या है? इट कैन लीड टू द परफोरेशन ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया में छेद होने शुरू हो जाते हैं, एंड हीलिंग रिजल्ट्स इन द स्कारिंग ऑफ द होल आई। और जब इसको ट्रीट कर रहे होते हैं या जब इसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो पूरी की पूरी आंख बिगड़ सकती है विच कैन फ्रीक्वेंटली लीड टू टोटल ब्लाइंडनेस, जो कभी कभी पूर्ण अंधेपन की तरफ अग्रसर हो सकती है। मैक्सिमम केसेस में ये पूर्ण अंधेपन की तरफ अग्रसर हो जाती है, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन होने के कारण विटामिन ए की कमी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इसकी एक्सेसिव डोज ले रहे हैं तो उससे हाइपर विटामिनोसिस ए या विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो सकती है विच टिपिकली रिजल्ट्स फ्रॉम, अगर हम हाई डोज सप्लीमेंट्स ले रहे हो वो लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो डॉक्टर की सलाह के बिना आपको सप्लीमेंटेशन नहीं लेनी चाहिए। जब तक विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना हो सप्लीमेंटेशन तो वैसे नहीं लेनी चाहिए। डाइट के थ्रू विटामिन ए भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, एक्सेसिव अमाउंट्स में ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। पीपल रेयरली गेट टू मच ऑफ विटामिन ए फ्रॉम डाइट अलोन। डाइट से हम उतना नहीं ले पाते जितना सप्लीमेंट में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, तो उसको हमें डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। एक्सेस ऑफ विटामिन ए स्टोर्ड इन द लिवर, लिवर में स्टोर हो सकता है, एंड इट कैन, लिवर में ही स्टोर होता है विटामिन ए, क्योंकि लिवर एंड विटामिन ए और आयरन जो है ये क्लोजली एसोसिएटेड है, बोथ रिलेट टू ग्रीन कलर, एंड दोनों के दोनों लिवर में स्टोर होते हैं। इसीलिए बच्चे के लिवर में 6 मंथ्स तक का विटामिन ए और आयरन का स्टॉक साथ में होता है। एक्सेसिव विटामिन ए स्टोर्ड इन द लिवर एंड इट कैन लीड टू टॉक्सिसिटी एंड इट कैन लीड टू प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स जैसे विजन चेंजेस, स्वेलिंग ऑफ द बोन्स, ड्राई एंड रफ स्किन, माउथ में जख्म हो सकते हैं और कन्फ्यूजन हो सकती है, भूल सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी स्पेशली केयरफुल नॉट टू कंज्यूम टू मच ऑफ विटामिन ए, क्योंकि इससे बच्चे में कभी कभी कुछ बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं बाय डिफॉल्ट, जिनको फिर रेक्टिफाई भी नहीं किया जा सकता। सो वी नीड टू closely monitor the intake of vitamin A in our diet. This was all about vitamin A. Now let's move to vitamin D. Vitamin D can be made in the skin from a precursor which is in close resemblance to cholesterol, जिसका नाम है 7-dehydrocholesterol. It is formed in our skin by exposure to sunlight or can be provided pre-formed in the diet. तो अगर हम सनलाइट में बैठते हैं तो जो हमारे स्किन के नीचे 7-dehydrocholesterol है दैट इज द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी, इट इज कन्वर्टेड टू विटामिन डी। इसका साइंटिफिक नेम कैल्सीफिरोल है।
द वर्जन मेड इन द स्किन इज रेफर टू एज वाइटामिन D3। जो स्किन में बनता है उसको D3 बोलते हैं, लेकिन जो डाइट के थ्रू बहुत कम चीज़ों में प्रेजेंट होता है उसको हम वाइटामिन, दे कैन बी मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ वाइटामिन D अगर वो रिलेटेड टू एनिमल है, और अ क्लोजली रिलेटेड मॉलिक्यूल ऑफ प्लांट ओरिजिन विच इज नोन एज वाइटामिन D2। सो D2 एंड D3 इसकी फॉर्म्स हैं। नाम इसका कैल्सीफिरोल, कोलेकैल्सीफिरोल है। इसके जो फूड सोर्सेज हैं वो बेसिकली ये सनशाइन वाइटामिन है, बिकॉज इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द स्किन फ्रॉम 7-dehydrocholesterol ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। स्मॉल अमाउंट्स आर प्रेजेंट इन फ्यू डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, चीज, बटर, मार्गरीन, क्रीम, एग यॉक, लिवर, ऑयस्टर्स एंड सर्टेन वेराइटीज ऑफ फिश। इसीलिए जो इसके सप्लीमेंट्स बनते हैं वो फिश लिवर ऑयल से बनते हैं, कॉड लिवर ऑयल से स्पेशली वाइटामिन D के कैप्सूल बनते हैं जेल वाले। तो इसका जो मेन सोर्स है वो सनशाइन है। तो जो लोग सनशाइन में नहीं बैठते, धूप में नहीं बैठते हैं, उनकी बॉडी में सनशाइन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं। और जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करते, बिकॉज स्मॉल अमाउंट्स में ये दूध, अंडा, चीज़, बटर, मक्खन, मार्गरीन, यकृत, ऑयस्टर्स जो एक तरह का एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, और कुछ वेराइटीज़ ऑफ फिश से मिलता है। सो लेट्स मूव टू द फंक्शंस ऑफ वाइटामिन D। हम सबको पता है कि वाइटामिन D हमारी बोन्स के कैल्शियम और फॉस्फोरस को मोबिलाइज करता है। वाइटामिन D इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द नॉर्मल ब्लड लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर बोन फॉर्मेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व कंडक्शन एंड अदर जनरल सेलुलर फंक्शंस ऑफ ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। वाइटामिन D इन एडिशन टू कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, अगर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हैं बॉडी में और वाइटामिन D नहीं है तब भी आपकी बोन्स की प्रॉब्लम है। अगर वाइटामिन D है और कैल्शियम फॉस्फोरस नहीं है तब भी प्रॉब्लम है। इसलिए इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। वाइटामिन D इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन अवर ब्लड। कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेंटेन करता है, और बोन्स हमारी कैल्शियम फॉस्फेट की बनती हैं, दांत हमारे कैल्शियम फॉस्फेट के बनते हैं। तो ये नॉर्मल मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम चाहिए जो वाइटामिन D से होता है, नर्व कंडक्शन, स्नायु तंत्र की मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चाहिए, और बॉडी के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो प्रत्येक कोशिका के लिए वाइटामिन D इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मिनरलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन्स। जब फ्रैक्चर हो जाता है या छोटा बच्चा है उस टाइम पे भी हमें दांतों की फॉर्मेशन के टाइम पे भी हमें वाइटामिन D चाहिए। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोमिनेंट नॉन कोलेजिनस प्रोटीन जिसे ऑस्टियोकैल्सिन बोलते हैं। ये एक विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन है फाउंड इन द बोन मैट्रिक्स एंड डेंटाइन ऑफ टीथ which is associated with newborn formation. So vitamin K and vitamin D both play an important role in the mineralization and formation of new bones and teeth in our body. Next functions are bone growth and डेवलपमेंट प्लस कैल्सिफिकेशन ऑफ द ऑस्टियोइड टिश्यू। तो बेसिकली इनके साथ बहुत एसोसिएटेड है। वाइटामिन D ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद बोन ग्रोथ एंड देयर डेवलपमेंट। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द कैल्सिफिकेशन ऑफ ऑस्टियोइड टिश्यू। ऑस्टियोइड टिश्यू क्या होते हैं? प्रोटीन मिक्सचर जो ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स जो बोन्स बनाते हैं उनमें एक प्रोटीन मिक्सचर होता है, उसकी कैल्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। जब ये मिनरलाइज होता है तो बोन्स बनती हैं। Next function is formation of enzymes. Vitamin D is essential for the formation of two enzymes. The names are alkaline phosphatase in the intestinal lining जो कैल्शियम की ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो उसका प्रवहन है उसके अंदर एल्केलाइन फॉस्फेटेज होता है जो हमारी इंटेस्टाइनल आंत की झिल्ली में प्रेजेंट है, वहाँ वाइटामिन D की आवश्यकता है। और दूसरा एंजाइम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज जो कोलेजन फॉर्मेशन करता है बोन मैट्रिक्स में। हमारी बोन में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक बोन सेल, एक बोन मैट्रिक्स। तो बोन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज जो आपने ADP के नाम से भी जिसको आप जानते हो इसमें यूज होता है, ये कोलेजन फॉर्म करता है। कोलेजन इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स। तो हमारे जॉइंट्स को बड़ा ये हेल्दी करता है। Another function of vitamin D is regulation of amino acid levels in the blood. Vitamin D helps to prevent loss of amino acids to the kidney, and so it regulates the amino acid level and regulates the citric acid level in tissues and bones. Vitamin D हमारी गुर्दे के थ्रू जो अमाइनो एसिड्स वेस्ट होके रीअब्जॉर्प्शन हुए बिना बाहर जा रहे होते हैं उनको रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, इसलिए हमारी बॉडी के प्रोटीन लेवल को, अमाइनो एसिड लेवल को मेंटेन करता है। Another function it plays in muscle formation and metabolism. It also takes part in muscle function and their metabolism. मसल्स बनाने में और उनके चयापचय में हेल्प करता है। वाइटामिन D का रोल इनिबिशन ऑफ कैंसर सेल प्लोरिफरेशन एंड ग्रोथ में भी पाया गया है।
ऐसा माना जाता है दैट विटामिन डी रिड्यूसेस द प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल इंटेस्टाइनल, लिम्फैटिक, मेमोरी एंड स्केलेटल सेल्स एंड प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीजेस। तो स्किन डिजीज से बचाता है तथा कैंसर सेल्स की फॉर्मेशन को डिमिनिश करता है। रोल इन द इम्यून सिस्टम, आपको पता है हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो टी सेल्स के थ्रू होती है। तो अगर हम ज़्यादा डोजेज खा लेते हैं कैल्सीट्रायोल की, तो जो नेचुरल स्टेरॉयड हार्मोन है जिसकी वजह से हेल्दी बॉडी में एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी प्रोड्यूस होती है, एंड अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इंटरफेयर्स विद द टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो टी सेल्स के द्वारा जो प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी को मिलनी होती है उसको ये डिमिनिश करता है जब इसकी डेफिशिएंसी होती है। तो इसकी एक्चुअल एडिक्वेट इंटेक इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर immunity of the body. Also helps in the regulation of blood pressure. The renin-angiotensin system which regulates the blood pressure. हमारी बॉडी में दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में। The synthesis of renin is decreased by calcitriol through its interaction with vitamin D regulator. Inappropriate activation of renin-angiotensin system plays an important role in the human hypertension, and adequate amount of vitamin D levels is important for decreasing the risk of high blood pressure. तो जो लोग हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त हैं उनको विटामिन डी यानी कि धूप में बैठना चाहिए तथा विटामिन डी का इंटेक करना चाहिए डाइट में टू अवॉइड इट्स डेफिशिएंसी। देन टॉकिंग अबाउट द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ऑफ विटामिन डी की स्टैंडर्ड रेगुलर फॉर्मेशन है जो 2010 के द्वारा दी गई थी ICMR के द्वारा। 400 इंटरनेशनल यूनिट्स विच आर इक्विवेलेंट टू 10 माइक्रोग्राम्स पर डे फॉर ऑल द एज ग्रुप्स। सभी के लिए यही है। अगर इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं इंक्रीज नहीं होती सिवाय उन केसेस में जिन लोगों में डेफिशिएंसी है। तो वहाँ पे जब डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं तब आप इसकी रिक्वायरमेंट को सप्लीमेंटेशन से पूरा करने के लिए अग्रसर होते हैं। सो लेट्स मूव टू द clinical signs of deficiency. The deficiency of vitamin D is basically of two types. In infants and adults it is different. In infants the deficiency is called rickets, and in adults it is called osteomalacia. एक और भी टाइप है ऑस्टियोपोरोसिस, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी, बट उससे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट रिकेट्स। रिकेट्स के क्या सिम्टम्स हैं, हमें कहाँ से पता चलता है कि जो बच्चा है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहा है। तो यंग इन्फेंट्स में डिलेड क्लोजर ऑफ द फॉन्टेल्स, फॉन्टेनेल्स होते हैं, सॉफ्ट मेम्ब्रेनस गैप्स बिटवीन द क्रेनियल बोन्स, हमारी जो ब्रेन की जो बोन्स हैं, सॉफ्टनिंग एंड रिड्यूस मिनरलाइजेशन ऑफ द स्कल, आपकी जो स्कल है, जो खोपड़ी है, वो थोड़ी सी नरम हो जाती है। लेकिन ये सिम्टम हो सकता है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर अच्छे से जज कर पाए, लेकिन जो थोड़े से ओल्डर इन्फेंट्स होते हैं, यंगर इन्फेंट्स हो गए, बहुत छोटे इन्फेंट्स का मतलब 0 to 2 ईयर्स के बच्चे, तो पहले 6 महीने में ये दिक्कत होगी, तो ये वाली प्रॉब्लम्स होंगी स्कल वाली। अगर ओल्डर इन्फेंट्स में है तो सिटिंग एंड क्रॉलिंग इज डिलेड, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा बैठना शुरू करता है आफ्टर 6 months अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज, और क्रॉल करना शुरू करता है, रेंगना शुरू करता है। सो दे आर डिलेड। अगर वो डिले हो जाती हैं, एक नॉर्मल एक माइलस्टोन एज होती है कि इस स्टेज पे बच्चा जो है वो क्रॉल करने लगता है, रिड़ने लगता है, और इस स्टेज पे बच्चा बैठने लगता है। यदि बच्चा अपने नॉर्मल एज ग्रुप से पीछे है, पिछड़ गया है, तो इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी। ऑल्सो सॉफ्ट फ्रेजाइल बोन्स हो जाती हैं, बोर्ड लेग्स हो जाती हैं, जो लेग्स हैं वो धनुष आकार की हो जाती हैं, टेढ़ी मुड़ जाती हैं, जो घुटने हैं, जो थाइज हैं और जो पाँव हैं वो अंदर की तरफ हो जाते हैं और घुटने बाहर को निकल जाते हैं, तो धनुष बाण के जैसी शेप ले लेती हैं। एनलार्जमेंट ऑफ द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन इज देयर। कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है जो रिब्स के फ्रंट में, हमारी जो ब्रेस्ट बोन है ना, स्टर्नम, वहाँ पे एक अलग तरह की सोजिश आ जाती है, एनलार्जमेंट हो जाती है, विद रोज ऑफ नोब्स एंड बीड्स फॉर्मिंग अ रैकेटिक रोजरी। रैकेटिक रोजरी, वहाँ पे बीड्स, वो उनके जो दाने हैं वो दिखाई देने लगते हैं हड्डियों के, और पिजन चेस्ट, तो जो अस्थि पिंजर है वो बाहर निकल आते हैं। ऐसे लगता है जैसे कबूतर जैसी छाती, बच्चे का जो वक्षस्थल है वो कबूतर जैसी छाती जैसा हो जाता है, और जो स्पाइन है, जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है, उसमें कर्व आ जाता है, बच्चा झुक के चलने लगता है। ये जो सिम्टम्स हैं ये घर पे या एक नॉर्मल लेमैन इनको आराम से देख सकता है, जज कर सकता है।
In symptoms से we get to know that there is a deficiency of vitamin D in the body of the child. Enlargement of the wrist is there. नॉक नीज हो जाती हैं, एंकल जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, पेन होने लगती है. पोरली डेवलप्ड मसल्स होती हैं, लैक ऑफ मसल टोन, पॉट बेली बीइंग द रिजल्ट ऑफ वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, एंड देयर इज वीकनेस विद डिलेड वॉकिंग. बच्चा चलता भी लेट है. रेस्टलेसनेस रहती है, हर टाइम बेचैन रहता है, नर्वस इरिटेबिलिटी रहती है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है. हाई सीरम एल्केलाइन फॉस्फेटेज हो जाता है बॉडी में, जिसको आप मेडिकल टेस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं. लो इनऑर्गेनिक ब्लड फॉस्फोरस हो जाता है. नॉर्मल और लो सीरम कैल्शियम हो जाता है. तो कैल्शियम फॉस्फेट दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे क्योंकि विटामिन डी नहीं है. तो ये मेडिकल टेस्ट हैं जिनके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट द इन्फेंट इज सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स. टेटनी करेक्टराइज्ड बाय लो सीरम कैल्शियम, मसल ट्विचिंग, क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, कन्वर्जन्स उसको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, फिट पड़ने शुरू हो सकते हैं. डिलेड डेंटिशन, दांत निकलने में भी देरी हो सकती है. एंड मेल फॉर्मेशन ऑफ द टीथ, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, उनमें जल्दी कैविटीज़ बन जाएंगी. परमानेंट टीथ मोर सब्जेक्ट टू डिके. तो जो एक दूध के दांत और स्थायी दांत, अस्थायी दांत में तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्थायी दांत जो बहुत जल्दी टूट जाते हैं. दिस ऑल्सो इज अ साइन ऑफ रिकेट्स. सो ये वो लक्षण है जिनके थ्रू हम जज कर सकते हैं कि इन्फेंट इज सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स एंड वी नीड टू गिव the required treatment. While in adults, the clinical signs of osteomalacia are softening or demineralization of the bones, which leads to deformities of legs. Legs की bones में problem आएगी, spine में, गले में और pelvis में. pelvic होता है hip joint के पास. So as the bones soften, weight may cause bowing of the long bones. लॉन्ग बोन्स उनकी भी बेंड हो जाएंगी, धनुषाकार ले लेंगी. वर्टिकल शॉर्टनिंग ऑफ द वर्टेब्रे एंड फ्लैटनिंग ऑफ द पेल्विक बोन. जो पेल्विक बोन है वो फ्लैटन हो जाएगी, उसके कर्व्स खत्म हो जाएंगे. रिमैटिक पेन, आर्थराइटिस जैसी, गठिए जैसी पेन हो सकती है इन द बोन्स ऑफ लेग्स एंड बैक. जनरल वीकनेस विद डिफिकल्टी इन वॉकिंग, नॉर्मल कमजोरी होगी और चलने फिरने में प्रॉब्लम आएगी. और बहुत जल्दी स्पॉन्टेनियस मल्टीपल फ्रैक्चर, ज़रा सा गिरने पर फ्रैक्चर हो जाएगा, जो कि एडल्ट्स में होता है. Normal parturition difficult since sacrum convexity is increased, ribs of the iliac bone are flattened and the inlet becomes asymmetrical and narrowed. Parturition होती है डिलीवरी प्रोसेस. सो फीमेल्स को नॉर्मल पार्टूरिशन में प्रॉब्लम होगी, सिजेरियन कराना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो सैक्रम की जो बोन्स हैं लास्ट में टेल बोन्स के पास, और इलियक बोन्स जो हैं वो फ्लैटन हो जाती हैं और नैरो हो जाती हैं. सो नॉर्मल डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड बिकम्स डिफिकल्ट. एंड इन एडिशन टू दिस, यही मैं आपको बताना चाहूँगी, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ में कैल्शियम की या विटामिन डी की कमी होती है तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है. जो स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है उसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, क्योंकि फिर उनकी जो जब विटामिन डी कैल्शियम दोनों की कमी एक साथ हो जाती है, देन इट लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं और पाउडरी फॉर्म होकर टूटने लगती हैं. दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस. वाइल अगर हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी की बात करें तो एडल्ट्स में इट इज ऑस्टियोमलेशिया, इन्फेंट्स में इट इज कॉल्ड रिकेट्स. ठीक है, तो अब हम करते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन डी, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सीक्वल. टॉक्सिसिटी मीन्स अधिकता. जब हम विटामिन डी अधिक मात्रा में ले रहे हैं, जो कि नॉर्मल केसेस में बहुत कम पॉसिबल है, परंतु फिर भी कभी कभी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट गाइडेंस जब हम लेते हैं तो वी सफ़र फ्रॉम टॉक्सिसिटी. दिस टॉक्सिसिटी इज हाइपरविटामिनोसिस डी. The adverse effect of this intake may include hypercalciuria. आपके मूत्र में कैल्शियम की मात्रा एक्सेस हो जाएगी, एक्सेसिव यूरिनरी एक्सक्रीशन होने लगेगा कैल्शियम का. एंड हाइपरकैल्सीमिया मींस एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, क्योंकि एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन होने लगेगी ना विटामिन डी ज़्यादा होने से, तो कैल्शियम से पता चल जाएगा कि विटामिन डी की हाइपर विटामिनोसिस हो गई है. एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ विटामिन डी आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल फ्रॉम डाइटरी सोर्सेज. डाइट से हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, हैंस केसेज ऑफ विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन आर वेरी वेरी रेयर. तो बहुत कम होता है, लेकिन जहाँ पे सप्लीमेंटेशन चल रही है वहाँ ज़रूर चेक करना चाहिए. नेवरदलेस टॉक्सिसिटी मे अकर इन इंडिविजुअल्स ऑन एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ सप्लीमेंटेड वाइटमिन्स, जो मैंने अभी बताया. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दे आर कॉन्स्टेंटली ड्रिंकिंग मिल्क विच इज़ फोर्टिफाइड विद इनअप्रोप्रिएटली हाई लेवल्स ऑफ विटामिन डी. क्योंकि जब हमें पता है आजकल प्रचलन है सप्लीमेंटेशन का, तो बहुत सारी कंपनीज मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए अपने पदार्थों को फोर्टिफाई कर देती हैं विद विटामिन ए, फोर्टिफाइड विद विटामिन डी. तो उस केस में एक्स्ट्रा डाइट, इतनी एक्स्ट्रा डोज चली जाती है जो हाइपर विटामिनोसिस की तरफ ले जा सकती है. द साइंस एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद इट में आर, जो हाइपर सप्लीमेंटेशन के कारण है, एनोरेक्सिया,
भूख ना लगना, नाउजिया उल्टी आने की फीलिंग होना, जी मचलाना, एंड वॉमिटिंग कभी कभी वॉमिट्स हो जाती है, फॉलोड बाय पॉलीयूरिया यूरिन में कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाएगा और यूरिन बार बार जाने का मन करेगा, पॉलीडिप्सिया प्यास कम लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, वीकनेस कमज़ोरी आ जाएगी, नर्वसनेस होगी और प्रूरिटीज यानी कि ईचीनेस होगी, शरीर पे खुजली होने लगेगी। रीनल फंक्शन कैन ऑल्सो बी इम्पेयर्ड इन दिस स्टेज एंड मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में आकर जो पर्टिकुलरली किडनीज के अंदर कैल्सिफिकेशन हो सकती है विच कैन लीड टू एडवर्स फंक्शन ऑफ द किडनीज, तो उस सर्जन तंत्र पर नेगेटिव इम्पैक्ट डल सकता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट वाइटामिन ए एंड वाइटामिन डी। आई होप I have tried to clear all your concepts. In case there is some problem, you can refer to the suggested readings which I'll be sharing in the upcoming slides. So let's test our understanding and the knowledge of this concept via certain MCQs. First MCQ is how many types of vitamins are there? 2, 3 or 4? जैसा कि आप सबने पढ़ा, there are 2 types of vitamins, fat soluble and water soluble. So answer A is correct. There are total dash vitamins which are known till date, 11, 12 or 13. 13 vitamins are known till date. A, D, E and K are which type of vitamins? Are they fat soluble or they water soluble or alcohol soluble? All 4 of them are fat soluble vitamins. The scientific name of vitamin A is tocopherol, calciferol or retinol. रेटिनोल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए। डैश इज द प्रीकर्सर ऑफ रेटिनोल। बताइए, कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन या कैरेट? कैरोटिनॉइड्स तो हैं लेकिन कैरोटीन, स्पेसिफिकली बीटा कैरोटीन इज द प्रीकर्सर ऑफ रेटिनोल। Then calciferol is the scientific name of vitamin dash, A, B or D. It is the scientific name of vitamin D. Dash is caused by the deficiency of vitamin D. First disease जो आप deficiency disorder के साथ करेंगे which will be associated with the deficiency of vitamin A is night blindness यानी कि रतौंधी। B complex and C are dash soluble vitamins, water soluble, fat soluble or alcohol soluble. Water soluble. B complex and C are, both of these are water soluble vitamins. Dash is caused by the deficiency of vitamin D in children. अभी हमने पढ़ा rickets. Dash is caused by the deficiency of vitamin D in adults. Osteomalacia. आपने ध्यान रखना है, osteomalacia and rickets. So let's discuss few test questions which can be of help in your exam preparation. First question is discuss the role of vitamin A in visual perception. आपको विजन साइकिल बना के विटामिन ए का विजन के लिए, दृष्टि के लिए जो रोल है उसको डिस्कस करना है. What level of intake elicits acute vitamin A toxicity? What are the signs and symptoms of acute hypervitaminosis A? कितनी ज़्यादा एक्सेसिव डोज से विटामिन ए की अधिकता हो सकती है और ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे हमें हाइपरविटामिनोसिस ए की जानकारी प्राप्त हो सकती है, ये हमने डिस्कस कर लिया है. आपको इसको लिखना है. एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन D3 फ्रॉम इट्स प्रोविटामिन. आपको इसमें 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल से, प्रोविटामिन होता है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन, जब वो एक्टिवेट हो जाता है precursor is provitamin form and activated form is the main vitamin form. So आपको विटामिन D3 का सनशाइन की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल से कन्वर्ट होने के बारे में यहाँ लिखना है. लिस्ट द सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन. बच्चों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो कि रिकेट्स है उसके लक्षण बताने हैं. And list the functions of vitamin A in human body. You have to briefly discuss all the functions of vitamin A. कौन कौन से कार्य करता है हमारे शरीर में, उन सब की जानकारी यहाँ देनी है. Write a detailed note on rickets, osteomalacia and osteoporosis. मैंने बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर किया है. rickets, osteomalacia and osteoporosis, इनके बारे में टिप्पणी करनी है. वाई इज वाइटामिन डी कॉल्ड सनशाइन वाइटामिन. वाइटामिन डी को सनशाइन वाइटामिन के नाम से क्यों जाना जाता है? यहाँ पे भी वही रोल आना है जो सनलाइट की, सनशाइन की प्रेजेंस में इसका कन्वर्जन है और जो सनलाइट की प्रेजेंस से ही हमारी बॉडी में फॉर्म होता है. नेम द सोर्सेज ऑफ वाइटामिन ए एंड वाइटामिन डी. आपको दोनों वाइटामिन ए और वाइटामिन डी के भोज्य स्रोतों का विवरण देना है. सो स्टूडेंट्स, this was all about vitamin A and vitamin D. I want to extend my special thanks to eGyankosh portal of IGNOU New Delhi. From the modules of vitamins and micronutrients, I have been able to prepare this presentation and have been shared with you for your educational growth. Similarly, I am sharing with you the references and suggested books which you can refer for further understanding and clarity of these concepts. These include your
MS Bamaji's Textbook of Human Nutrition, ICMR's Nutrient Requirements and RDAs for Indian, Subhangini A. Joshi's Nutrition and Dietetics and Human Nutrition book also, and B. Sri Lakshmi's Nutrition Science. So these 4-5 books are for your reference purpose. Thank you so much for your patient listening. I hope you will be able to understand this topic via this video lecture and will be able to appear in your exams very well. Thank you so much. See you soon.